Experiment for class 12, another experiment to find the refractive index of a glass slab by using traveling microscope. That is the aim. Happens required, the theory part. Refractive index of the glass slab is equal to real depth by apparent depth. That is the one of the definition or the one of the concept of refractive index. However, there are so many concept of the refractive index. So we are talking about the glass slab. With the help of this particular working formula, we are using this formula for finding the refractive index of the glass slab. ठीक है, दिस इज द ग्लास स्लैब. इस ग्लास स्लैब का हमको क्या निकालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रियल डेप्थ एंड द एपरेंट डेप्थ? जस्ट टू सी theoretically, say here the glass slab is there, and if I am going to put something, say the cross mark here. So what happens if you are going to see from top, it appears to be raised. क्रॉस मार्क्स ऐसा लगेगा कि ऊपर की ओर आ गया. दैट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड हियर. दैट इज द एपरेंट. सो दिस पर्टिकुलर position from the top is the apparent depth. So apparent depth is this is your apparent depth, and real depth, the thickness of the slab, is the real depth, right? So these so we have to find out this particular point where the virtual image is formed. So practically how we are going to do it with the help of traveling microscope? First we have to take the reading here at this particular point, then at this point, then at the top here. Then we have to find out. तो हम इसको निकाल सकते हैं, रियल डेप्थ कितना है, एपरेंट डेप्थ कितना है, एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड इट एंड वी विल गेट इट. नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. फर्स्ट यू सी द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप. This is the traveling microscope. Just to see traveling microscope. Cross section view of the traveling microscope is this, right? In this microscope there are two readings. Here the scale, यहाँ पर भी scale है और यहाँ भी scale है, same scale. So just to see the scale, यहाँ पर इसको मेजर करने के लिए you have to find out the least count. This is your main scale. Just to see main scale, and this is the vernier scale. ये क्या है, main scale है और ये vernier scale. If you are going to see properly, then your 50 divisions are there in the vernier scale. इसमें कितना डिवीज़न है, 50 डिवीज़न. There are 50 divisions. See it properly. कितना डिवीज़न है इसमें, number of division 50, and that 50 division coincide with the 49 division of the main scale. मेन स्केल के 49 डिवीजन्स, डिवीज़न मैंने घर, कितना डिवीज़न है, जैसे यहाँ पर एक घर, दो घर, तीन घर, ऐसे करके छोटा बड़ा मिला के. सो ये डिवीज़न, दिस डिवीज़न इज देयर. सो इन ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड अ 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 49 main scale division. That is the important part. So least count we have to find out. For taking reading, you require this particular least count. So as I told you, 50 vernier scale division is coinciding with the 49 main scale division. So here the least count is equal to, we know, 1 main scale division minus 1 VSD, vernier scale division, into 1 MSR, या 1 main scale division, main scale reading.
तो 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस, अब ये 1 VSD की जगह ये हम MSD कैसे लेके आए, 1 VSD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इधर आ गया, 49/50 MSD, इतना मेन स्केल रीडिंग। तो अल्टीमेटली इट इज़ 1/50 मेन स्केल डिवीज़न इंटू 1 मेन स्केल रीडिंग। तो 1/50 डिवीज़न मेन स्केल ये आ गया, इंटू इतना डिवीज़न है, इंटू एक मेन स्केल रीडिंग का मेजरमेंट कितना है, 0.5 मिलीमीटर। जस्ट टू सी 0.5 मिलीमीटर। that you have to see properly. I think it is clear. यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है, ये बड़े बिग लाइंस आर 1 मिलीमीटर, तो उसके बीच में छोटी छोटी लाइन है, दैट इज 0.5 मिलीमीटर. सो मेन स्केल रीडिंग इज योर 0.5. So that's why 0.5 millimeter. So ultimately you calculate 0.01 millimeter is the least count. अब इसको सेंटीमीटर में अगर मान लो कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर. ये क्या हो गया, लीस्ट काउंट. क्योंकि मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा अल्टीमेटली, इन केस ऑफ द मेजरमेंट मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज़ द मेज़रमेंट. अब इसको मेज़रमेंट कैसे करेंगे, अब ये देखिए प्रैक्टिकली यहाँ पर सबसे पहले एक यहाँ पर क्रॉस बना दिए या एस्ट्रिक मार्क बना दिए, एंड देन वी हैव टू फाइंड द रीडिंग, टेक द रीडिंग फ्रॉम दिस स्केल, because we are measuring height wise, so we are going to take from this scale. Same scale is there as this particular scale. So here we have to find out the reading, exact reading. पहले ये वाला रीडिंग लिए जब यहाँ पे केवल क्रॉस था, एक रीडिंग आया. उसके बाद अब हम क्रॉस को पहले फोकस कर लेंगे, अच्छा से फोकस कर लेंगे. फोकस होने के बाद ये क्लियर कट दिखाई देगा, ये फोकस हो गया. यहाँ से देखना है, it is very small, so it is very difficult to show. थोड़ा हल्की लाइन दिखाई दे रही है क्रॉस का, वो क्लियर है, फोकस हो गया. तो एक बार फोकस होने के बाद वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब दिस स्क्रू, देन वी हैव टू मूव इट फ्रॉम दिस स्क्रू. इस स्क्रू का यूज़ करेंगे. तो ये एक रीडिंग हुआ, जो आया रीडिंग, हम रीडिंग कैसे नोट करेंगे, मेन स्केल रीडिंग. मेन स्केल क्या होगा, इस वर्नियर का पहला पॉइंट जहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, वर्नियर का पहला पॉइंट जहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है या कोइंसाइड कर रहा है. ठीक, उसके बाद वर्नियर कैसे लेंगे, कौन सा डिवीज़न वर्नियर का मेन स्केल से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीज़न वर्नियर का मेन स्केल से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो वो नंबर में आएगा. सम नंबर हो सकता है 30th नंबर, 30th डिवीज़न या 50 डिवीज़न या 49 डिवीज़न या 48 को, वो हमको देखना होगा यहाँ से विद द हेल्प ऑफ, अगर देखने में प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक लेंस भी लगा हुआ है, इस लेंस का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. तो ये रीडिंग आ गया. अब उसके बाद आफ्टर दैट एक रीडिंग ले लिए, कौन सा पोजीशन का, ये ए पोजीशन, जब केवल यहाँ पर क्या था, क्रॉस मार्क या एस्ट्रिक था. आफ्टर दैट we are going to place this glass slab. अब ग्लास स्लैब को हम यहाँ पर प्लेस किए हैं, ग्लास स्लैब को प्लेस किए तो डेफिनेटली वो जो एस्ट्रिक मार्क था वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, appear to be raised. अब हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे,
अब इसका यूज़ करके हम लोग ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ये वाले स्क्रू का यूज़ करके थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ से देखेंगे कि फोकस फर्दर फोकस हुआ कि नहीं। जो वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज जो इसका बन रहा है एस्ट्रिक का, वो फोकस हुआ कि नहीं, वो मान लेते हैं ये पोजीशन में फोकस हो गया। अब फिर हम रीडिंग लेंगे दिस मेन स्केल वर्नियर, राइट, तो सेकेंड रीडिंग आ गया। अब थर्ड वाले में क्या करना होगा, थर्ड वाला पोजीशन में अब कुछ चॉक पाउडर लेके, लाइकोपोडियम नहीं है तो चॉक पाउडर से ही काम चलेगा। यहाँ पर चॉक पाउडर लिए और इसके ऊपर डाल दिया, ग्लास स्लैब के ऊपर। अब हमको ये जो ग्रैन्यूल्स है चॉक का, इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस करना है, ये जो ग्रैन्यूल्स हैं। तो उसको फोकस कैसे करेंगे, इससे नहीं करेंगे, इसी से करेंगे। अब इसको फिर से फर्दर ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए, हाँ यहाँ पर फोकस हो गया, ग्रैन्यूल्स हमको दिखाई दे रहा है। तो वो रीडिंग होगा थर्ड रीडिंग, राइट। वो 3 रीडिंग मेरे हाथ में आ गया। वो 3 रीडिंग कौन सा था, ये हो गया फर्स्ट रीडिंग। ये पोजीशन जब आया था एपरेंट इमेज का, तो ये सेकेंड रीडिंग। एंड ये जो ऊपर ग्लास स्लैब के ऊपर जो ग्रैन्यूल्स चॉक का पाउडर रखे थे उसको फोकस किए थे, तो ये हो गया थर्ड रीडिंग। अब हमको रियल डेप्थ कैसे निकालेंगे, दिस रीडिंग एंड दिस रीडिंग, ये दोनों रीडिंग को माइनस कर देंगे तो रियल डेप्थ निकलेगा। एपरेंट डेप्थ, ये दोनों को माइनस कर देंगे, ये रीडिंग और ये रीडिंग को माइनस कर देंगे तो मेरा एपरेंट डेप्थ निकलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, that is the way how we are going to find out of the glass slab, refractive index of the glass slab. And for more accuracy, take at least 4 to 5 readings and take the average. Okay, that is the way how we are going to do it.